सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी और अन्य महानुभाव, सम्माननीय विधायक और सम्माननीय कुलपति जी, और विधायक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ ये विधायक ही नहीं है, ये विधाता भी है। विधाता है, भाग्य विधाता, झारखंड के करोड़ों लोगों के भाग्य विधाता है, ये विधायक हैं। तो आज as the Vice Chancellor has put, it's a very unique occasion, and also I can say it's a very historic occasion that where the legislature, which is the policy-making body, and academicians who are supposed to advise them, and this is the first occasion, I think, in our country where academicians have been called for so that they can share their views as far as their constitutional limitations are concerned, particularly in an ever-increasing and ever-challenging subject like constitutional law, particularly the power sharing, mostly either horizontally or vertically. I know my young friends are here, who are all very brilliant and expert constitutionalists. But I venture to speak because, as my friend has said, dhanam moolam idam jagat. And the entire what the small India, I think the entire world is only because of this. And sir, I may start with this. Particularly, I confine myself to the fiscal relations. And fiscal relations, here we have, let us try to be a little bit, because our honorable speaker has already given a very great idea about some of the most important principles, and also our Vice Chancellor. But I want to slightly go into the historical past. When, as far as the fiscal relations are concerned, we may have to go back, even beyond 1860 or 60s or so. So right from that time onwards, there were several states, independent states, which were never united. So the entire efforts, in 1919 was only to integrate and bring unitary features. And unfortunately, finance was never given to Indians. Finance has always become only a reserved subject. And Indians were asked to only, they had to take care of welfare. That means they have to take responsibility. But the power of money always rested with the British people. This is what was known as the hierarchical setup. Power with somebody and responsibility with somebody else. And sir, then came, there were some forces, and because of some historical conditions and all that, 1935 Act wanted that there should be a federal setup. Therefore, the entire 1935 Act, modeled on the Canadian Constitution, it has tried to see that a federal setup is meant for India. So 1935 Act has come, but it has not been fully implemented because of several reasons, including Second World War. So uske baad mein there are several changes, and ultimately we got to see our independence in 1947. Uske pehle, it was on 9th December 1946, पहली बार हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम बैठे थे सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स। तो जहां 13th December 1946, पंडित जवाहरलाल नेहरू, while introducing the objective resolution which has बाद में become मुख्य उद्देश्य का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें उसने पहले दे दिया था भाई all residuary powers will be with the states, with the units.
जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में है, वैसे ही रेसिडुअरी पावर्स विल बी विद द स्टेट, सो दैट स्टेट्स विल हैव मोर इंडिपेंडेंस और सेंटर विल हैव इसी ओनली फ्यू फंक्शंस। तो इसका मतलब क्या है, इसी भारत ऐसी जो देश है अभी, इसमें क्या है, इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड्स में आ रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज़ नॉट ए मेल्टिंग पॉट, इट इज़ लाइक ए बुके। यानी बुके में क्या है, घास का भी फूल रहता है और इसी गुलाब का भी फूल रहता है, लेकिन सब इसी एकदम अच्छे रहते हैं। तो ऐसे यानी हमारी एक्चुअली सी दिस वाज व्हाट शी वाज एक्सप्लेन्ड सी Sir Radhakrishnan also in the Constituent Assembly. Our India is not as of a melting culture, but it's a bouquet of all the flowers. It gives no equal importance to a flower of grass as well as the flower of rose. को गड़बड़ा है क्या, गड़बड़ा है? अच्छा। तो ऐसी स्थिति में एक्चुअली वी वांटेड दैट टू फ्रेम ए federal setup where you see all the units now will have you see absolute autonomy with an overarching power you see over the center, what was envisaged. लेकिन ऐसी जो चीज हुई है, that was on 14th and 15th you see August. I mean, you see, that reminded me, remind anybody, Charles Dickens' Great Expectations. It was a spring of hope, a spring of hope and this winter of despair. साहब, हम सबकी उम्मीदों की एकदम इसी साकारता हुई है, और वही पीरियड में there was despair, devastation. People, see, I mean, the blood was flooding from, see, from west to the east. And bodies were not coming, you see, as a whole. They were cut into pieces and they have come here. These are unfortunately the most tragic conditions which India had to face on 14th and 15th of August 1947. Well, friends, this has resulted in absolutely a change or a shift of thinking. भाई ये फेडरेशन यहाँ काम में नहीं आएगा, बिकॉज हियर इज ए स्टेट वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट, और फिर अलग हो जाएंगे, फिर सेपरेट हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जो हमारे सी 150 साल का जो सैक्रिफाइस हुआ था वो सब बेकार हो जाएगा। Therefore, I mean, with heavy hearts, when they have to again see meet in 1948, they said, भाई see ये ऐसे नहीं होगा, let us change then now preamble, and wherein there are only three most important factors. One is the most outstanding, and the most enduring unity and integrity of the country. और दूसरी है political liberty should be there. Everyone should feel politically he is independent. Third, most important is economic equality should be there by removing poverty. See, there should, I mean, we should wipe out the tears from all eyes. Till then, I think the Indian nation cannot sleep. So these are the three most important things now with that we have started our constitution, or therefore we have to change the entire preamble of the constitution. तो प्रियम्बल में इसी चेंज करते हुए हम अल्टीमेटली यू हैड गिवन इसी मोर इम्पोर्टेंस. In fact, Dr. Ambedkar also, in fact, this was not discussed at all इसी in the assembly also. भाई ये हमारे लोग इसी हम आपस में लड़के मर रहे हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने आप में अपना मैत्री बढ़ाओ. ये मैत्री क्या चीज होती है? मैत्री का वर्ड अंग्रेजी में बराबर नहीं है लेकिन फ्रैटर्निटी बोलते हैं. Fraternity, somebody asked Dr. Babasaheb Ambedkar when he was converting himself into Buddhism in Nagpur. क्या डॉक्टर बाबा साहब आप क्या जी जैक्स रोसू फ्रेंच फिलोसोफर का लिए क्या लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी करके? अरे भाई हम किसी दूसरे को सीखने की जरूरत नहीं है. हम हमारे बहुत बड़ा मास्टर है गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध ने हमको पढ़ाया था मैत्री.
मैत्री के कोई इक्वलेंट अंग्रेजी में नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों को सोचने की स्थिति नहीं है, क्योंकि अंग्रेज लोग अलग बात करते हैं। तो मैत्री है, फ्रैटर्निटी। सर उसके साथ में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। जब ये हमारी से पूरी ऐतिहासिक जो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल वाज नेवर इज टेकन केयर ऑफ। This dignity of individual can be taken care of when you can improve their economic conditions, when you can ensure their political stability. तो करके हमने एक राज्य अपना संविधान में एक मुख्य उद्देश्य का बनाया, उसके मुताबिक इसी पूरा हमने संविधान लिखाया था। इसमें मेजर इम्पोर्टेंट इसी थिंग इसी मेरे को अभी केशव राव जी बोल रहे हैं अभी, फिस्कल रिलेशंस, यानी इसमें फेडरल फिस्कल रिलेशंस, इसमें संगठित और इसी व्हाट में यूनिटरी, सबको एकात्मिक। तो इंडिया is such a country where there are several disparities are there. One place is very rich, another place is very poor, and this even resources also are there, but we are not able to utilize them properly. Jharkhand is really rich. I think even they have got the richest mineral, that is, I think uranium also. इतना रिच होने के बाद भी I think they are not in a position to take the advantage of this one. So similarly, there are some other other states which are able to develop much better. So you have to need an equilibrium. यानी ऐसा नहीं कि एक स्टेट एकदम ऐसे रिच बन जाए और इसे दूसरा स्टेट एकदम पुअर बन जाए। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारा क्या है, संविधान में बहुत सारे धाराएं हैं, एक अनुच्छेद है, उनके मुताबिक उन्होंने किया था। तो इसमें हमारे देश में ऐसी संगठित यानी फेडरलिज्म लाए थे, यानी फेडरलिज्म का कोई ठीक डेफिनेशन नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ अमेरिका का जो फेडरलिज्म वही फेडरलिज्म करके, दैट इज नॉट फेडरलिज्म एट ऑल। इनफैक्ट फेडरलिज्म हैज गॉट सो मच फ्लेक्सिबिलिटी। अमेरिका का फेडरलिज्म देखिए, वो 1789 में शुरू हुआ था। आज क्या है सब, इट इज मोर यूनिटरी देन फेडरल। और इसे आपको लगता है कि फेडरल करके, लेकिन इंडिया में क्या होता है, इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड। और इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, सहकार, और दूसरा बोलते हैं प्रतिपक्ष, कॉम्पिटिटिव। सर ये दोनों के बीच में से अलग रहता है, मोर फ्लेक्सिबल इज नोन एज ऑर्गेनिक फेडरलिज्म। ऑर्गेनिक फेडरलिज्म यानी क्या है, जैसे शरीर होता है उसमें हमारे डिफरेंट भाग होते हैं, तो एक एक भाग इसी दूसरे सब शरीर के लिए उन्नति के लिए बढ़ जाती है। तो वैसा ही हर एक स्टेट, हर एक इसी अंग सबको क्या है काम करना है। देन इट इज एन ऑर्गेनिक वन एंड इट हैज टू डेवलप, इट इज ए लिविंग वन। Even federation also is a living one. And in a federation like the United States, you say it is क्या है, bottom up. And नीचे से आके सब स्टेट्स मिलके एक बनाते हैं, that is Federation United States. हमारा क्या है, it is top down, ऊपर से नीचे का आया था। In normal circumstances में क्या है, एकदम फेडरल रहता है, not एकदम फेडरल। सब स्टेट्स were given so much independence. लेकिन सब स्टेट्स, अरे मुझे माफ कीजिएगा, स्टेट्स एटलीस्ट एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न, यानी वी आर इन ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। वी वांट इक्वालिटी बट वी डोंट वांट टू रेस्पेक्ट अदर्स इक्वालिटी। वी वांट फ्रीडम बट वी डोंट वांट अदर्स टू टॉक। वी वांट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बट वी डोंट वांट टू मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन। तो ये सब में क्या होता है, बिकॉज इन सच ए बिग कंट्री वेयर यू हैव गॉट 140 crores of people, you have to see, we have to imbibe in them this type of fiscal responsibilities. तो इसमें मैं टॉप डाउन, इसमें क्या है सब, यानी विदाउट अवर नॉलेज फेडरलिज्म हैज कम। यानी अगर संविधान को अगर आप देखे जाएंगे तो फेडरल है नॉर्मल टाइम्स में, लेकिन कुछ अब नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है, एकदम यूनिटरी बन जाता है।
लेकिन कभी कभी इसी विदाउट आवर नॉलेज इट हैज बिकम फेडरल। मैं एक दो उदाहरण देता हूं। जैसे पहले हम कभी सभी सोचे थे लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म, जैसे पहले किया था ये कि किसी दे हैव डिवाइडेड द कंट्री एंड देन इसी 1956 में again you see all the states are formed on the basis of language, and now we see every state almost has got Hindi, English and regional language, and this is a type of compromise where you see all states are happy that nothing is imposed on them. This is a type of federalism. और दूसरी है क्या बोलते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म। जब इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है, पहले 1991 के पहले there was purely unitary setup where you have to depend only upon the center. लेकिन 1991 के बाद जब लाइसेंस राज गया, then you see when have liberalization has come, now chief ministers have become more important. They have become so important in the federal financial system. और similarly फिस्कल फेडरलिज्म करके बोलते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म का क्या है, अनोखा स्कीम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें क्या होता है, देर आर सो मेनी बैलेंसिंग व्हील्स, लाइक फाइनेंस कमिटी है। ये फाइनेंस कमिटी जो है इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसीविंग, ये दिस इज नॉट इज ए पॉलिटिकल बॉडी, दिस इज प्योरली कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स हु आर एक्सपर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। और इसको क्या है, प्रेसिडेंट से अपॉइंट्स, एंड इट इज दिस फाइनेंस कमिटी व्हिच गिव्स रिकमेंडेशंस। भाई स्टेट्स को इतना चाहिए, union is in a position to collect no more and more taxes, it has got no better machinery, states are not in a position to collect money nor is in a position to levy the tax also. So इसमें taxes and all these things are collected and distributed. Center is in a position to collect no better and it will distribute to the states. और एक एक फाइनेंस कमीशन आके तो इनका टैक्स शेयरिंग जो है, टैक्स शेयरिंग का क्या है, इसका रेशियो बढ़ा दिया था। पहले क्या था 20% था, और बाद में क्या हुआ था 27% था, बाद में 30% था। अभी लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन ने कितना किया था, भाई जी जो आप कलेक्ट करते हैं उस पर 43% यू हैव टू गिव इट टू द स्टेट्स। और स्टेट्स को क्या है, बिकॉज स्टेट्स डिपेंड ऑन यू, क्योंकि रीजनल डेवलपमेंट स्टेट्स में रहता है। इन एडिशन टू दिस, नॉट मेल दिस वन, सेंटर हैज गॉट मोर रिस्पॉन्स टू सी दैट ऑल रीजन्स डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली करके उसके हाथ में स्पेशल पर्पस ग्रांट्स करके हैं, स्पेशल पर्पस ग्रांट्स। इसमें क्या होता है एक्चुअली, शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनकी भला करने के लिए, उनकी वेलफेयर करने के लिए यू कैन डिमांड द सेंटर, and they are known as conditional grants. ये conditional grants के लिए भाई हमको इसी 3,000 करोड़ दो, we are going to spend this on tribals because they are the people, अनुसूचित जाति जो है, जनजाति, तो उनके लिए। और ट्राइबल एरियाज भी है, क्योंकि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी जब इसी चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, ये लोग इसी जमीन पे भी खड़े नहीं हो रहे हैं, तो ये किसके लिए है? तो आप इसलिए मैं बताता हूँ, आपके ये झारखंड के भाग्य विधाता है। इफ यू डोंट टेक केयर, हु विल टेक केयर ऑफ देम? तो ऐसे ही ये बाद में एक GST करके आया था, माल और इसी सेवा कर का। ये सब इसी बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है जो दुनिया में लोग इसी, पहले आपको मैं बताता हूँ, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी करके वो 1970 से, यानी दे वर ऑल सो डिवाइडेड, दे वांटेड टू कम टुगेदर, क्योंकि उसमें यूनिटी में क्या है, बहुत स्ट्रेंथ है सब। तो यूरोपियन यूनियन में आया था। तो इट वाज ए पैराडॉक्स, आई थिंक इन 2017 ब्रिटेन, यानी सर इसी इतना कि होपलेस और इर्रेस्पॉन्सिबल वोटिंग ऑफ पीपल रेफरेंडम में चला गया था। ब्रिटेन शुड कम आउट ऑफ इस यूरोपियन कॉमन मार्केट करके बताया था। द रिजल्ट इज अभी भी उनको तकलीफ है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया, सी इट्स द ग्रेटनेस ऑफ ऑल द राज्य, all states they have come together, they have surrendered their sovereignty. सर हम टैक्स ये नहीं लेंगे, आप ले लो, आप इकट्ठा करके हमको दो। तो सर इसी आज
ये 2-3 साल से कुछ तकलीफ होंगे, और ये तकलीफ क्या है, इसी टेम्पररी है, लेकिन इससे क्या है, आज कम से कम इसी गए 4-3 महीनों से देख रहे हैं जिसका कलेक्शन बढ़ रहा है, 1,60 crores, 1,60,000 crores लाइक दिस, तो देन इसी आपका शेयर भी बढ़ेगा। और आगे बढ़कर ये भी हो रहा है, बिकॉज द स्टेट्स ऑल्सो वर गिवन सी देयर ऑटोनॉमी टू टैक्स नो लिकर एंड ऑल्सो द पेट्रोल. And I think now, see, they are also trying to see, bring petrol also in that. Though the state's powers are restricted, see, to collect the finances, still, because the center is in a position to collect in a better way, because they have got better machinery. और मैंने ये भी सुना कि several states में कैसे collection बहुत अच्छे नहीं हो रहे करके, तो GST का सी अलरा चल रहा है, then इसी उसका, और over and above that, the Finance Commission is always there. और सब ऐसी है कि ये यानी भारत के लोग ऐसे कल्चरली दे आर वन थिंग. कोविड के टाइम में नोबडी नोज द एंटायर कंट्री अनइंटेंशनली, इनएडवर्टेंटली एंड एक्सीडेंटली इट हैज बिकम वन. वैसे सब कैलामिटीज जब आते हैं, देन इसी नेचुरली ऑटोमेटिकली कम्स टुगेदर. यू नीड नॉट, देयर आर नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ऑल दिस थिंग. सो दिस इज व्हाट आई सी कॉल इसी ऑर्गेनिक फेडरलिज्म. So, so that's why you see these are some of the IPN. Okay, last. So last. So GST का जो है, see there are so many states are suspecting, but you see there is no need see of making any doubt about it. GST is the perfect example of economic federalism. और उससे क्या है, देश को भी एडवांटेज है और राज्यों को भी एडवांटेज है. और इसी इसके अच्छे कलेक्शन से क्या होता है, एंड फाइनेंस कमिशन इज ऑलवेज देयर. इन एडिशन टू दिस लास्ट, अंडर आर्टिकल 282 डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स करके है. यहाँ क्या होता है, जी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चलते हैं. इसमें क्या है, the center can see give see the grants to any state प्रयोजन के लिए. ये प्रजा क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है, इसका क्या है सर, पहले ये क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन करके रहता था. ये प्लानिंग कमीशन ऐसी जो अपना है, जिसका लाठी उसका भैंस, भाई इसका ये हमारा पार्टी है और इसको पैसा दे दो, और ये हमारा पार्टी नहीं है करके, अंडर 282 grants नहीं receive were purely discretionary, nobody could question it. And now unfortunately नीति आयोग आने से और आपका टैक्स शेयरिंग बढ़ने से ये सेंटर का जो है पार्टीसन एटीट्यूड बहुत कम हो गया. इसकी वजह से फेडरलिज्म इनफैक्ट नो इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री टू द स्टेट्स and also the finance commission, and also particularly for that planning commission का जो आया था ना, that control of this is a very good sign that we have won, and federalism has become really the greatest principle. Autonomy to the maximum extent, at the same time public purpose. A public purpose, sir, public means common man. उसकी भलाई करो, और इसी उसकी पैसा है उसके लिए खर्चा करो. एंड सर इसी एंटायर सिस्टम ऑफ जस्टिस इज ओनली पब्लिक पर्पस. अगर उनके लिए नहीं तो किसके लिए है. बस, थैंक यू.